नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. सब बोलो कृष्णा, बोलो Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Jaya Radha Radhikaram Radha Radhikaram Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Jagannath Swami Nayan Patagami Nayan Patagami Bhavatu Me Jagannath Swami Jaya Goranita 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 Jaya Goranita Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol
जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिवृक्षकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर बीबीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी की जय। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिवृक्षकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम को राधा कुंजरी गोवर्धन जी की जय। श्री श्री वृंदावन महाप्रभु द्वारका मथुरा जगन्नाथपुरी धाम की जय। यमुनामयी गंगा माई की जय। नंदा भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनहरी जी की जय। श्री गौर भगवान की जय। शीला प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। Thank you. हरे कृष्णा। वो मेरे को ना चश्मा रह गया था, वो दे दो मेरे को। मैं घर ढूंढ रहा था सारा। पिछले नया बनवाया एक और, ये तो पहले से एक और बनवाया। तो जैसे हम हर संडे को भगवत गीता का पाठ करते हैं अभी 1 घंटे का, तो उसमें 1 श्लोक या 2 श्लोक जितने हो पाते हैं उसमें डिटेल चर्चा होती है, फिर क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। आपका नाम क्या है माता जी? ज्योति माता जी। आप विवेक प्रभु है ना? तो हम बोल रहे थे गौरा निताय की जय। कौन है गौरा निताय, पता है आपको? गौरा निताय बोल रहे नहीं पता। जिनके अभी दर्शन करके आए वो है, वो कृष्ण बलराम है। तो जब कृष्ण बलराम द्वापर युग में थे ना, तो जब कलयुग में भगवान ने अवतार लिया, हर युग के अंदर भगवान का नाम चेंज हो जाता है। जैसे पहले राम, लक्ष्मण, फिर नरसिंह भगवान है ना। फिर ऐसे जब कलयुग में आया तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया। तो चैतन्य महाप्रभु, उनके बड़े भाई दैट इज कॉल्ड नित्यानंद। तो गौर बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि गौर वर्ण में पैदा हुए थे और गौर देश में, गौर देश का मतलब होता है बंगाल और बिहार, बंगाल है बेसिकली वो, तो वो वहां पे पैदा हुए, जिसको बोलते हैं गोरा। और नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं नित्या, गौर निताय बोलते हैं। तो वो है जिनके भी दर्शन करें ना, गौर निताय। ठीक है। तो कलयुग में बोला जाता है कृष्ण बलराम इस फॉर्म में आया हुआ। ठीक है। और हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी जी। हरे कृष्ण। ये भगवत गीता का 9 चैप्टर का पेज नंबर खोल लो, 351 है। 9 चैप्टर का 22 श्लोक। आप भी ये वाली भगवत गीता ले सकते हो प्रभु, आप देखना चाहते हो ये लेना पड़ेगा। शेयर करो, किसी को चाहिए तो ले सकता है। 22 पेज नंबर ऊपर 351। छोटी छोटी ले जाएगी, चश्मे का नंबर बढ़ गया आपका। छोटी छोटी आज आगे चेक कराओ पहले नंबर। नहीं है ना, अच्छा टैब ले लो फिर आप एक। पंडित प्रभु एक टैब दिलवाओ इनको। टैब 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 से थोड़ा, मैंने टैब देखा ना, इसको देखा तब थोड़ा ऐसा लगा। ये वाला मिल गया। पेज नंबर 351 श्लोक नंबर 22। तो पहले एक एक वर्ड बोलेंगे पीछे पीछे। अनन्या, जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो अनन्य भाव से। चिंतयन्तः, चिंतन करते हुए। माम, मुझको।
ये जो जनः व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूछते हैं तेषाम उन नित्य सदा अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों को की योग आवश्यकताएं क्षेमम सुरक्षा आश्रय महामी वहन करता हूँ अहम मैं। क्या लगता है इंपॉर्टेंट श्लोक है या हल्के में? सारी इंपॉर्टेंट होते हैं भगवद गीता। अनन्यश्चिन्तयन्ते माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ये अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्ते मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्ता मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई भी एक प्रभु जी पढ़ो। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई माता जी अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। This is very important श्लोक। इस श्लोक को पढ़ने के बाद क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस आ सकता है। ठीक है, यू हैव बुक माता जी, आप शेयर कर लो किसी के साथ। आपके पास क्या है? ठीक है, ठीक 9.22। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ श्लोक पढ़ा है, वर्ड मीनिंग पढ़ा है, हम उसका अनुवाद पढ़ते हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य सेवा, दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। शिला प्रपात की जय। ज्योति माता जी सोच रहे अभी यार श्लोक शुरू नहीं हुआ फिर इतना लंबा बोल दिया। यू आर बाय प्रोफेशन टीचर हो ना। तो ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बताया जाता है कि कोई भी शास्त्र को समझने से पहले गुरु के ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना। अदरवाइज कोई भी शास्त्र समझ में नहीं आ सकता। आप अपनी बुद्धि से किसी शास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है। हमारी बुद्धि तो चमड़े की बुद्धि है, क्या आएगा समझने में, ठीक है ना। तो ये प्रेयर होती है कि अपने गुरुजनों को कि उस तरह से हम उनको समझ सकते हैं। भगवत गीता का 4.34 श्लोक है, तत्विधि प्रणिपातिन परिप्रश्न सेव्या उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। तो उसमें यही बताया गया था कि अगर आपको वाकई कुछ जानना है ना तो सबसे पहले गुरु के पास जाओ। उसमें भगवत गीता में श्री कृष्ण बोल रहे हैं एक बार अर्जुन को कि पहले गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे विनम्र प्रार्थना करो, फिर जिज्ञासा करो। तो यानी कि इफ एनीबॉडी वांट्स टू पुट अप सम क्वेश्चन, तो इट डजंट मीन लाइक दिस इज नॉट ए मटेरियल वर्ड कि यार यू गो टू द टीचर और बोलोगे यार यू आर माई स्लेव, क्योंकि तुम्हारे को तो सैलरी मिलती है, हम पैसे देते हैं ना। आजकल स्टूडेंट तो ये सोचते हैं भैया आंसर दो, और क्वेश्चन पूछते हैं आंसर एक्सपेक्ट करते हैं बताना ही पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले गुरु के पास जाना है, अगर कुछ जिज्ञासा पूछनी है तो पहले भैया सेवा करनी है, फिर जिज्ञासा, फिर विनम्र प्रार्थना करनी है, फिर क्या करना है, फिर जिज्ञासा करनी है। अब अगर गुरु चाहे तो वो आपकी जिज्ञासा का आंसर दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो ये देखेंगे आपके अंदर कितनी क्यूरोसिटी है, कितनी डिजायरनेस है, वेदर यू आर एनफ कैपेबल टू लर्न दिस, तो सिखाएंगे, नहीं तो कहेंगे बाद में आना, नहीं सिखाते। तो इसलिए प्रेयर की जाती है। ठीक, अनन्या चिंतयन्त माम ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब कौन बताएगा? वेरी गुड, नहीं ठीक है, वेरी गुड। और जो ओके, जिसका कोई अंत नहीं, और यस विदाउट एनी अदर मोटिव। मिला नहीं 922। अनन्य मतलब विदाउट, मतलब और कोई ना हो, सिर्फ ये, ठीक है। वो एक फिल्म आई थी ना, सिर्फ तुम, यही था नाम शायद। सिर्फ यार अकाउंट्स कहाँ से आ गया बीच में यार, ये लिखा हुआ है इसमें, कहाँ लिखा है? जिनका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आ गया? तो कोई आप बिजनेसमैन हो ना, बिजनेसमैन हो ना आप? मुझे पता चला। यस, तो सिर्फ तुम मतलब यस, nobody else means nobody else. This is a conviction, nobody else. जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं? नहीं, किसको बोल रहे हैं? मेरे को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? जो मेरे को अनन्य भाव से सिर्फ मेरे को पकड़ता है, सिर्फ मेरे को, और मेरी पूजा करता निरंतर, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरा करूंगा। कौन बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? मेरे को बोल रहे हैं, मतलब हम सबको। तो यानी कि किसका प्रॉमिस है ये? किसको प्रॉमिस है?
मेरे को प्रॉमिस है, तो ये झूठा हो सकता है? विश्वास नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप जीते 2 करोड़ रुपए। आ जाओ वापिस आ जाओ। वो नहीं मिल रहा है यहाँ से। चलो ज्यादा आ गए तो हमारे को देना, मंदिर बनवाना है हमने। कोई बात नहीं, अभी आ जाओ श्लोक में, बाद में पूछना बदला। तो क्या बोल रहे हैं? उनकी आवश्यकता पूरा करता हूं और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं। तो हमारी जिंदगी में यही तो टेंशन है कि भैया घर गृहस्थी कैसे चलेगी, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, आगे फैमिली बढ़ानी है, गाड़ी भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और ये चाहिए फैक्ट है, ऐसा कोई मतलब वो तो है नहीं, अतिशयोक्ति तो है नहीं कि नहीं चाहिए, चाहिए, हमारे को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो भगवान कह रहे जो नहीं है ना वो मैं दूंगा, और जो है फिर उसकी टेंशन होती है ना, इसको सेव कहाँ करें, कल को चोरी ना हो जाए, बैंक लॉकर में रखना है, गोल्ड का रेट बढ़ेगा या शेयर का रेट बढ़ेगा या प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, कंफ्यूजन, वही टेंशन, मतलब मैं बैठा हूँ। इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, दुनिया का कोई बंदा गारंटी नहीं ले सकता, कोई, भगवान ओपनली बोल रहे हैं दिस इज माई गारंटी। तो अनुवाद या तात्पर्य शिला प्रपात की द्वारा, शिला प्रपात की जय। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चनम दास्यम साख्य भावम और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। तो क्या डेफिनेशन दी है, 24 घंटे कौन कैसे रह सकता है? या तो श्रवण करे, सुने, या कीर्तन करे, कीर्तन का मतलब सिर्फ कीर्तन नहीं होता, जो सुना है उसको आगे भी बता सकते हैं, ठीक है, या भगवान के बारे में स्मरण करे, या पाद सेवन, भगवान की सेवा करे। कैसे सेवा करे? घर में जो लैमिनेशन है उनको साफ करे, है ना, धूप बत्ती वगैरह दिखाते हैं, ऐसे घर में पूजा जो करते हैं ना, पाद सेवन। वंदनम करे, भगवान के सामने प्रेयर करे, अर्चन करे, कुछ अर्चन करे, दास से भाव रखे कि भगवान मैं तो आपके नौकर के नौकर का नौकर का नौकर बनने लायक नहीं है ना, तो फिर भी आप मेरे पे कृपा दृष्टि बनाए रखो। साख्य भाव का मतलब होता है मित्रता पूर्वक, और आत्मनिवेदन का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि हमने पूरी तरह से हम्बली रिक्वेस्ट मैनर में काम कर रहे हैं, तो नवधा भक्ति बोलते हैं इसको, के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, ये शुभ होते हैं। सॉरी माता जी क्लास ले रहा हूँ, माता जी क्लास ले रहा हूँ, क्लास। नहीं फिर आज तो मैं बिल्कुल बिजी रहूंगा ना रात तक, कल बात कर लें। हरे कृष्ण। तो क्या बोल रहे थे? आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिस, सॉरी, ऐसे कार्य शुभ होते हैं। तो अब है ना, हमारे लिए क्या बोला जाता है कि हमारे को शुभ कार्य करने चाहिए, है ना। तो शुभ की डेफिनेशन लिखी है, शुभ की डेफिनेशन क्या है कि भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में चिंता करना। अब ज्योति माता जी सोच रहे हैं यार ऐसे कैसे, मैं भैया बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, वो एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ यार, इसमें भगवान कहाँ से नहीं? नहीं ज्योति माता जी, सही बात नहीं, सोच रहे थे ना। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। ये हर वक्त के साथ होता है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन। तो वो ऐसे आ जाते हैं जब हम घर से निकलते हैं ना सुबह, तो भगवान को याद करके निकलते हैं कि भगवान देने वाले भी आप और सब कुछ करने वाले हो। बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। ऊपर तो ही छत है, किसने दी? भगवान ने दी। तो अगर आप बुद्धि ना देते तो हाउ कैन आई टीच, नहीं ना। तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उस बुद्धि के द्वारा मैं, आपने मेरे को जो जिम्मेवारी दी है घर गृहस्थी को, उसको मेरे को आशीर्वाद दो, मैं अच्छे से पालन कर पाऊँ। अब जो आप 6-8 घंटे स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो वो कृष्णा कॉन्शियस बन जाता है। अब पढ़ाना बच्चों को अच्छे से, एनाटॉमी है या बॉटनी है, सब कुछ वैसे ही करना है,
लेकिन कृष्ण को सेंटर में सुबह कर लिया और फिर जब घर आए, थैंक यू कृष्णा, आज आपने मेरे को हिम्मत दी, मैं पढ़ा पाई। तो इस तरह से हमने भगवान को स्मरण किया, अदरवाइज कैसे करेंगे? सही बात है ना। आप खाना खाते हो तो खाना ही खाएंगे ना, लेकिन स्मरण कैसे करना है? महाप्रसादे गोविंदे। तो हम भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान ये आपने हमारे को प्रसाद दिया, थैंक यू सो मच, हम खा पा रहे। तो ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। इनमें क्या होती है? आध्यात्मिक शक्ति होती है। अब यहां से शक्ति का मतलब क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति का मतलब हुआ आध्यात्मिक बल। तो हमारे पास आध्यात्मिक बल कब आता है? जब हमारे पास कन्विक्शन होती है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? ज्योति माता जी बताओ, कन्विक्शन का मतलब। श्रद्धा माता जी बताओ। हाँ, वेरी गुड। तो उसके लिए ना पूरी तरह से शरणागति करनी पड़ती है। जैसे हम लोग नाई के पास जाते हैं ना शेप बनवाने, है ना, तो गर्दन ऐसे कर लेते हैं, उसके हाथ में उस तरह होता है जिस पर नया ब्लेड लगाया होता है, वो ऐसे कर रहा होता है। कोई जिंदगी का बंदा दिखा दे, कोई अननोन बंदे के हाथ में ब्लेड दे दे और उसको बोले वो सिर्फ रखेगा ना, तो हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे कि भाई ऐसे कैसे रख दिया। कल को जरा सा हल्का सा मिलीमीटर गया, हल्का सा, भाई कट के मर जाऊंगा मैं। भैया ये मजाक नहीं होता। लेकिन नाई के पास जाते हैं ना, दुनिया के कोई भी नाई, नो नो जान पहचान, ऐसे बैठ जाते हैं आंखें बंद करके। और कई बार सो भी जाए, तो एसी चल रहा है, कर ले भैया आराम से। क्या है? पूरा कन्विक्शन। एक नाई पे पूरा कन्विक्शन है, भगवान पे नहीं। अच्छा, आप तो डॉक्टर हो, अब आपने सर्जन को देखा होगा, आप सर्जन के साथ रहते हो। पेशेंट को पूरा का पूरा 100% विश्वास होता है डॉक्टर के ऊपर, 100%। वो कह रहा है, मैं भैया ये बैठे एनेस्थीसिया वाले ये बेहोश करते हैं ये ILBS में है ये बेहोश करते हैं तो क्या कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पूरा चीर फाड़ कर देते हैं। एक दिन मैंने पूछा, फिर भैया तुम ऑपरेशन थिएटर में होते हो क्या? क्या कह रहे? मत पूछो यार, बहुत गंद मचता है, पूरी तरह खून ही खून बह रहा होता है। कई डॉक्टर्स तो ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या बात है। आपने बताया था ना, फुल कन्विक्शन ऑन डॉक्टर्स। लेकिन भगवान पे नहीं करेंगे। भगवान, सॉरी यू हैव मेंशन द रॉन्ग श्लोक इन 9.22 कि जो नहीं है वो आप दे दोगे। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को खुद कमाना पड़ेगा, आई एम द डूअर, है ना। और प्रोटेक्ट भी मुझे ही करना पड़ेगा बिकॉज आप किताबों में हो। लेकिन नाई पे पूरा विश्वास है, आप पे नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है कि नहीं? तो विश्वास करना पड़ेगा। जो विश्वास करता है ना, भगवान उसके साथ होते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे को कंप्लीट शरणागत, कंप्लीट सरेंडर करता है, तब देख लो क्या करूंगा मैं। अर्जुन का कोई केस उठा के देख लो। अर्जुन बोलता है, अभिमन्यु को मारा सबने, वो क्या कैरेक्टर था उसका, जरासंध नहीं, सॉरी, वो जिसको छुपा लिया था सूरज के पीछे, जयद्रथ, यश। अब अर्जुन ने तो कसम खा ली कि भैया ये नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। अब भगवान कहते हैं कसम ये खाता है पूरी मेरे को करनी है, क्योंकि वो पूरा शरणागत था भगवान को, उसको पता है। फिर भगवान क्या करते हैं? सूरज को अस्त कर देते हैं। बताओ कोई मजाक चल रहा है क्या? फिर सूरज को दोबारा उदय कर लेते हैं। पूरी हजारों करोड़ों अरबों लोग वहां पे सैनिक हैं, वो सब मान जाते हैं कि रात होगी, सब, सूरज ढल गया। मतलब कितनी कन्विक्शन के साथ भगवान करते हैं, क्योंकि सूरज भगवान की आंख है। आंख से पलक जमगाड़ी बंद कर दिया और फिर उसको उदय करते, कहते मार ले। हर केस में ऐसे ही करते हैं। पूरा कन्विक्शन है अर्जुन का किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। हमारा है। अब फिर क्वेश्चन बनेगा, प्रभु जी एक बात बताओ, गाड़ी चला रहा हूं, पूरा कन्विक्शन है, सो जाऊं?
तो भगवान कह रहे बुद्धि दी है भैया, बुद्धि का इस्तेमाल कर, लेकिन विश्वास मेरे पे कर। तो गाड़ी तू आराम से चला, सारे नियमों का पालन कर, विश्वास रख, तो टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी हमेशा भय रहता है, ऑलवेज। हमारी जिंदगी के अंदर रोज हमारे को कभी वाइफ लेट आए, कभी हस्बैंड लेट आए, बच्चे लेट आए, माँ बाप लेट आए या कुछ, तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट। ऐसा ना हुआ हो, ये ना हुआ हो। और जिंदगी के पन्ने पलटा के देख लेना, 100 में से 99.99999999999 नहीं हुआ होता वो, लेकिन पॉजिटिव ही हुआ होता है, लेकिन वो नहीं आता दिमाग में। तो ये भय क्यों है? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बोला है जो सिर्फ आहार, निद्रा, भय, भय भय का मतलब डर, क्योंकि हमारी जिंदगी इन्हीं के ऊपर चल रही है, खाना, सोना, भय, मैथुन, दैट्स इट। एक बार अपनी फाइल किसको देनी है? भगवान के हाथ में दे दो। तो भगवान कहते हैं मेरी आपकी फाइल मेरे हाथ में है, तो इसकी टेक केयर कौन करूंगा? मैं करूंगा, लेकिन फाइल पूरी देनी पड़ेगी, डुप्लीकेट कॉपी नहीं, ओरिजिनल। तो क्या लिखा है? ऐसे कार्य शुभ होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिसमें भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाओगे, देन यू फील सेल्फ रियलाइजेशन। उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले अगर कोई सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मन का भ्रम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लोग बोलते ना, आज शाम सपने में आए, डर 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 डर, क्या था ऐसा, क्या आगे लगेंगे? आज शाम सपने में आए, गैया पी गए, दैया पी गए, टर। अरे सपने में क्या वो फिल्म करेक्टर आया होगा वही, ऐसे मजाक हो रहा क्या? तो तब भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। कब होता है आत्म साक्षात्कार? जब उसको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जाती है। आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्रदान की जाती है? जब वो पूरी तरह से भगवान को सरेंडर होता है। सरेंडर तभी हो सकता है जब वो भगवान के नाम का कीर्तन 24 आवर करेगा। श्रवणम कीर्तन पाद सेवनम विष्णु स्मरण, ये पूरी 9 विधि को पालन करेगा। तो ऊपर से चेंज चल रही है ये, कि ये करोगे तो आध्यात्मिक बल आएगा, आध्यात्मिक बल आएगा तो आपको आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन हमारे में यही मिसिंग हो जाता है, क्योंकि जिस फील्ड में हम मास्टर होते हैं, उस फील्ड में हम कहते हैं भैया मैं हूं, हु आर यू। और यही इसकी एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। सानिध्य का मतलब होता है संग। तो जो भक्त होता है वो कहता है मुझे किसी तरीके से भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान के भक्त मिल जाए, भगवान मिल जाए, गुरु मिल जाए। जब वो ये कामना करता है 24 घंटे, तो भगवान साक्षात्कार करता है। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। क्या लिखा है? बिना किसी। अब ये लाइन तो झूठ है। हम आसपास करोड़ों लोगों को देख रहे हैं, कोई भगवान को नहीं मिल पा रहा। भगवान कह रहे बिना किसी कठिनाई के मिल जाता है। नहीं रोन रो। तो पर साथ में ये भी बोले बिना किसी, तो आप कोई बताओ कोई एग्जांपल कि बिना किसी को कठिनाई के मिल जाता हो। ढूंढना पड़ेगा, है ना? नहीं वो तो है। एग्जाम्पल बताओ, आपके पड़ोसी को मिल गए भगवान जी, पड़ोसी के पड़ोसी को, उसके पड़ोसी को। तो हम ना गिनती के कुछ एग्जाम्पल दे पाएंगे। हाँ, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, लेकिन साथ में बिना किसी कठिनाई के प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे कठिनाई तो थी। तो इसका मतलब लाइफ में कठिनाई तो आएगी, लेकिन क्या हम बविल्डर होंगे? क्या बोले आप? लेकिन भगवान ने कहा नहीं होगा। क्या क्या है? बिल्डर नहीं होना। बिल्डर का मतलब कंफ्यूज नहीं होना। गोल क्या रहना चाहिए? एक मात्र, ओनली, सिर्फ तुम।
ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी अब कठिनाई तो आई, अभी जैसे प्रभु जी बताते ध्रुव महाराज प्रहलाद, कठिनाई तो बहुत आई, ध्रुव महाराज को कितनी आई, प्रहलाद महाराज को, लेकिन उनको कठिनाई लगी ही नहीं। अब एक बात बताओ, जलते हुए कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर किसी को डाला जाए तो उसका तो 1 मिनट में फ्राई हो जाएगा, लेकिन वो फ्राई क्यों नहीं हुए? उनको कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज को जलती चिता के ऊपर बिठा दिया, उनको फिर भी कुछ नहीं हुआ, पहाड़ से फेंक दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, हाथी के नीचे कुचल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब उनको रंच मात्र भी दर्द नहीं हो रहा था, ना कुछ हो रहा था, इसका मतलब कठिनाई नहीं है, वो एक थ्रिल हुआ उनके साथ, बस थ्रिल हुआ। किसी शास्त्र में लिखा है कि ध्रुव महाराज जी ने 5 महीने में भगवान को अचीव कर लिया था? किसी शास्त्र में लिखा हो, आपने भी पढ़े, आपने भी पढ़े, मैंने भी पढ़े, कि ध्रुव महाराज जी ने पहले सिर्फ फूल पत्ते खाए, फिर उसके बाद पानी लिया, उसके बाद हवा ली, कि वो तड़प रहे थे, भगवान मैं मरने वाला हूँ, बस अभी नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे को तपस्या करनी है, अब मरते मरते करूंगा, ऐसा तो नहीं लिखा उन्होंने, बोला पहले वो कर दिया, फिर पानी को छोड़ दिया, फिर सांस लेने लगे, फिर हफ्ते 3 दिन के बाद एक बार सांस ले, वो मजाक हो रहा है क्या? फिर उन्होंने जब सांस लेनी बंद कर रहे थे तो सब पकड़, भैया भगवान आ गए। तो कोई ऐसे कर सकता है? हम रोक सकते हैं 5 मिनट सांस? नहीं रोक सकते। ध्रुव महाराज ने कैसे रोक लिया? इसका मतलब उनको कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। हम रोक के देखो कठिनाई हो रही है, 2 मिनट रोकेंगे तो हम जब ऊपर चले जाएंगे सही बात है ना? तो इसका मतलब उनको कठिनाई नहीं हो रही थी, हो रही थी नहीं हो रही। तो वो कहां से आई पावर? एक योगी ने भविष्यवाणी करी कि खेतों में जा रहे हो ना तो बारिश आएगी आज। सबने बोला, बोल रहे हैं तो शायद आ जाए, नहीं आए, क्या चलते हैं खेतों में। एक बच्चा छाता लेके चला, टोपी पहन के चला, क्या हुआ? मैंने बोला तो है बारिश आई, छाता भी ले लिया। फुल कन्विक्शन, वो वाला कन्विक्शन चाहिए, वो वाला कि अगर बोल दिया भगवान ये बोल रहे हैं, वो मेरी आवश्यकताएं पूरी करेंगे तो करेंगे, मेरी हर चीज की रक्षा वो करेंगे तो करेंगे। इट्स नॉट माई ड्यूटी, मेरा काम है 8 घंटे काम करना, दैट्स इट। 8 घंटे के बाद पागल होने की जरूरत नहीं है। फिर जो प्रारब्ध में है वो चल के आएगा, और जो नहीं है वो नहीं आएगा। प्रारब्ध का मतलब होता है पिछले पास्ट कर्मास, पूछ लिया करो। तो जब आदमी इतना रिलैक्स मोड पे चला जाएगा कि मेरे को 8 घंटे काम करना है, 8-9 घंटे जो भी ड्यूटी है आपकी, उसके बाद मेरी लाइफ कृष्ण ने दी है तो मेरी लाइफ कृष्ण के लिए बनती है। लेकिन हम पूरी लाइफ निकाल देते हैं स्ट्रगल करते हुए, पूरी लाइफ, और जिसका कोई एंड ही नहीं है। किसी बंदे ने एटम के ऊपर रिसर्च करी तो पूरी जिंदगी लगा देता है, और फिर जब वो मर जाता है तो पता चलता है भैया ये रिसर्च के बाद ये आया था। फिर उसके ऊपर रिसर्च होती है, क्या ये रिसर्च ठीक थी? जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले रिसर्च की गई कि अर्थ जो है वो राउंड है, फिर 50-100 साल के बाद एक नया आया कोपर्निकस, उसने रिसर्च करी, ओ ये तो भैया गलत रिसर्च थी, ये तो ओवल है, इलिप्टिकल फॉर्म है। उस बंदे ने जिंदगी लगा दी। चलो मैं कह रहा हूँ रिसर्च सही भी है, ओवल है, ओके, फिर क्या कर लिया? मैं कह रहा हूँ कर भी लिया तो सिर्फ आपकी रिसर्च से काम हो रहा है। लेकिन अगर किसी को ये नॉलेज हो जाए, भगवान की और भक्तों की कृपा मिल जाए कि सर्वोपरि नॉलेज है भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनके बारे में श्रवण, जब ये पता चल गया, उसके बाद भी अगर हम अपनी लाइफ को किसी और मोटिव पे लगा रहे हैं तो गड़बड़ी है। काम कोई नहीं रुकेगा। अगर आप अपने आप को कर्ता समझते हो ना कि मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो काम होने वाला नहीं होगा भैया। वो अगर आप नहीं करोगे दूसरा कोई करके ले आएगा, चिंता मत करो, खूब टैलेंटेड है, खूब पॉपुलेशन है। लेकिन भगवान ने आपको चुना था कि यार आप मेरे पास आ सकते हो करोड़ों अरबों की भीड़ में, लेकिन तब आपने बोल दिया सॉरी यार, आई हैव मैनी वर्क्स, है ना, तो वहां पे ये काम करना। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त
भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आगे क्या, जठलम। मैं शंकराचार्य जी ने एक श्लोक दिया है, नहीं तो क्या चलता रहेगा, बार बार जन्म लोगे, माँ के गर्भ में आओगे, बार बार मृत्यु होगी, बार बार बुढ़ापा आएगा, बार बार बीमारी आएगी, चलता रहेगा। चलाते रहो, चलाते रहो। अब भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई है, पता है क्या बताते हैं वो ये कहते हैं, अगर आपने आध्यात्मिक नॉलेज ले ली ना और आप मर गए, तो अगला जो जन्म होगा जितना आपने आध्यात्मिक नॉलेज लिया उसके साथ होगा। जैसे आपने 8 माला पे छोड़ी ना, तो आप बचपन से ही ऐसे परिवार में पैदा होगे जहाँ भक्तों का परिवार होगा, और जैसे ही आप होश संभालोगे तो माँ बाप बोलते हो उन्होंने, बेटा अब बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। वो ये नहीं बोलेंगे पापा बोल, मम्मी बोल, कुछ ना, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो, ऐसे बोलो, राम राम बोलो, राम राम है। आप देखते हो ना आजकल वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे बच्चे श्लोक सुनाते हैं, वो कहाँ से आ गया, अपने को एक श्लोक याद नहीं होता। तो वो जैसे बोलना शुरू करते हैं उसको माला पकड़ा दी जाती है, वो बड़ी जल्दी 8-16 माला पे आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, ये आपको कितना टाइम हुआ आते हुए, कितनी माला करते हैं, कईयों को 16 साल लग जाते हैं, 16 माला नहीं होती। 4 महीने हुए हैं, 16 माला पे आ चुके हैं। ही स्टडिंग इन द 11th क्लास, 11th ना 10th इन बोर्ड। एवरी क्लास में आते हैं, सुबह भी क्लास में थे, शाम को भी क्लास में। 10th का बच्चा और उसके पेरेंट्स टेंशन में रह रहे होंगे इसी मंथ में, ये सारी ट्यूशन लगवाओ यार, 10th बोर्ड है, टेंशन में है। और ये देखो आपके सामने ही जगत है ना। 16 माला पे पहुंचना कोई मजाक नहीं है। अरे 4 महीना यंगस्टर कलयुग में धोती पहन के आ जाना, धोती, इट्स अ वेरी वेरी हरकुलियन टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। समाज में सब मजाक उड़ाएंगे, यार तू बच्चा, माँ बाप भी बोलेंगे यार क्या कर क्या रहा है तू। ये कन्विक्शन कहां से, पूर्व जन्म। और अगर किसी को लेट भक्ति मिली तो उसको क्या करना चाहिए, अभी हम लोग बता रहे थे, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारती त्रिवेण भक्ति योगे न यजता पुरुषम परम। सब बुद्धि आ गई ना, बुद्धि आ गई कि भैया ये भगवान का नाम पकड़ना पड़ेगा, उसी क्षण त्रिवेण भक्ति योगे ना, पूरी जान लगा के भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि अगला क्षण हमारे को पता ही नहीं है कि अगर मर गए तो अभी शुरू हो जाए। लेकिन अगर आपने इस जन्म में बीटेक करा आईआईटी से, एमटेक करा आईआईटी से, पीएचडी करी नासा से, और उसके बाद पोस्ट पीएचडी करी नासा से, और आप अब मर गए, अब आपका अगला जन्म बना कुत्ता बिल्ली बैंगन पकोड़ा हलवा कुछ भी जो भी बना, 84 लाख योनि, करोड़ों अरबों साल के बाद मनुष्य जीवन मिला, तो आपने जो बीटेक एमटेक पीएचडी पोस्ट पीएचडी करी थी वो जीरो है। अब आप एबीसीडी ही सीखोगे। लेकिन भक्ति में अगला जन्म गारंटी लिखते हैं भगवान की मनुष्य का है, तो पहले तो करोड़ों जीवन से बच गए, प्लस जितने पे छोड़ा था उतने पे शुरू हो गए। लेकिन मनुष्य अगर अगला जीवन फॉर्चुनेटली मिल भी गया मनुष्य का, तो भी बीटेक एमटेक पीएचडी पोस्ट पीएचडी के बाद वापस एबीसीडी पे आएगा, पूरी जिंदगी 30-40 साल तक स्ट्रगल कर देगा, इतनी सारी पढ़ाई करेगा, फिर 10-20 साल जो कमाएगा या जो नाम लेगा फिर मर जाएगा, फिर दोबारा एबीसीडी सीखेगा। तो ये क्या है, तो सीधा सीधा तरीका पकड़ लो ना यार, अपना जो कमा रहे हो, अपना जो गृहस्थ आश्रम है पालन करो, अपना जो नौकरी करनी है उसको करो, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के पूरा ध्यान उन पे लगा। ज्योति माता जी समझ में आ रहा है? आई हैव हर्ड दैट यू आर डूइंग मेडिटेशन। गुड। तो जब ध्यान लगाते हो तो किस पे ध्यान लगाते हो? रेकी, माय गॉड। सो वेन एवर आई एम पुटिंग अप इन दिल्ली यू कैन रेकी हेयर फ्रॉम, है ना भाई साहब, तो इलाज भी कर लेते हो उससे, रेकी में इलाज भी तो होता है। आ गया चलो, उससे क्या होता है? अच्छा, उस कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होएगा?
व्हाट? लाइक यू आर ए बायोलॉजी टीचर, तो आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, दैट्स इट। अगला जरा, यस ये है, ये काम करना, वो जो कर रहे हो अच्छी बात है। अब उसी चीज को करो, लेकिन सेंटर में ले आओ कृष्णा, कि मेरी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ताकि मैं कृष्ण के बारे में चिंतन ज्यादा करूं। करना वही होता है जो हम सब कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके सोचना पड़ेगा कि करना वही। अब बायोलॉजी से हटाओ, ले आओ कृष्ण को। बायोलॉजी में भी ला सकते हो, लेकिन कृष्ण ले आओगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का भला होगा ही होगा, क्योंकि तब आप स्पिरिचुअली साउंड हो जाओगे। तो जब एक बंदा स्पिरिचुअली साउंड हो जाता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसमें आध्यात्मिक बल आ जाता है, तो जो डिलीवरेंस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है ना। मैं भी गलती से पहले टीचर था, इसलिए मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। तो आप जैसे इंटेलिजेंट नहीं था, ऐसे था डफर सा था। तो यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता, यानी कि जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं, हमारे एक मंदिर में ब्रह्मचारी उन्होंने लिखा है, वन लाइफ टाइम फॉर कृष्णा। क्या लिखा? वन लाइफ टाइम फॉर कृष्णा। और देखा जाए तो लाइफ बची कितनी है भाई? एवरेज एज माता जी कितनी एवरेज एज? 70 लगा लो। अब मतलब चलो, अब आपको एक गिन लेते हैं। अभी तो आपकी उम्र कितनी है? 18, 15 साल। इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया। मैं अपनी बात करता हूँ। अब मेरी 53 है, 70 भी लगा लो, अगर सब कुछ सही चलेगा तो, है ना। तो बचे कितने? 17 साल। 17 साल में आधा दिन तो वैसे ही खत्म हो जाता है, फिर खाना पीना सोना। तो 17 के लगा लो, कितने हो गए? 8.5 साल। 8.5 साल में फिर आधा चला जाता है फालतू की चीजों में, तो बचेंगे 4 साल। 4 साल कर लेते हैं भक्ति, मजे में रहेंगे, अगला पुनः जन्म नहीं होएगा। सही बात नहीं है? एक भौतिकवादी के पास ना वैसे पूरे दिन टाइम नहीं होता भाई, 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होती है ना, होती है ना। फिर 7 8 घंटे सोएगा, फिर घर के काम करेगा, बचेगा क्या? 1 2 घंटे। मल्टीप्लाई बाय 17 साल कर लो, 17 साल मल्टीप्लाई बाय इतने दिन, इतने घंटे बचे गिनती के करके देख लेना हिसाब किताब। और उतने घंटे दे दोगे भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान ने कहा काम तो करना है, तो काम तो करो। उतने घंटे दे दो कृष्ण को, हो सकता है दिस लाइफ वन ऑफ द लास्ट बर्थ ऑफ योर्स, उसके बाद ये फालतू के चक्कर से बच जाओ। लेकिन हम सब कुछ समझ आते हैं, लेकिन फिर पता क्या बोलते हैं? परनाला तो यहीं से बहेगा। समझ में आई बात? नहीं आई ना श्रद्धा माता जी? हाँ, सुबह बता रहा था ना आपको। आपको भी बताइए, एक आदमी का नाली एक घर के आगे से जा रही थी, दो चार, तो लोग बड़े परेशान हो रहे थे, कह रहे बाबूजी आपसे रिक्वेस्ट है, ये ना नाली है, थोड़ा सा इधर ऐसे कर लो तो कोई परेशान नहीं आएगा। कह रहे हाँ बात तो सही कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। तो सब कुछ हो गया, कह रहे तो हम एक्सपेक्ट करें कि, कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल सब सही बात है, लेकिन ना परनाला ही बहेगा यहीं से। कह रहे अभी अभी तो आपने हाँ बोल दिया। कह रहे हाँ बात तो सारी सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ, पर प्रॉब्लम होती है, बीमारी फैलती है, ये होता है। कह रहे फिर कर दोगे आप? कह रहे नहीं, परनाला तो यहीं से बहेगा। अरे क्या मतलब यार, सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन कहे नहीं परनाला तो यहीं से बहेगा, जो मर्जी कर लो अब। तो परनाले को चेंज करना भैया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस में हम फेल होंगे, मैं भी बता देता हूँ। उस प्रैक्टिस में तो अपना हृदय भक्तों के सामने खोलना पड़ेगा। ये ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर देखो सब। जब तक आप अपना हृदय किसी कॉन्फिडेंशियल भक्त के सामने नहीं खोलते, हु आर यू, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग विद यू एंड योर लाइफ, कहाँ जाना है, कहाँ स्टक हो, भक्ति को कैसे आगे बढ़ाऊं, जिज्ञासा करो। फिर भक्त अपने एंड से आगे बात करके वो भगवान से प्रे करेगा, तब हम अध्यात्म में उन्नति करते हैं। अगर भक्ति में आके भी अगर ये सोचा कि आई एम द डूअर, मैं अपने एंड से इतना ही कर पा रहा हूं, फिर गड़बड़ी है। इसलिए बोला जाता है कि जो भक्ति की शुरुआत होती है वो भक्तों के साथ होती है। भक्तों के साथ की डेफिनेशन ये नहीं होती कि संडे के संडे आई विल स्पेंड 1.5 hours विद डिवोशन सर्विस, बाकी 6 दिन
22 घंटे मेरा भक्तों से कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग सेम मिस्टेक कि भक्त 1.5-2 घंटे के लिए बने हैं। उस 2 घंटे के अंदर भी क्या आएंगे, विवेक प्रभु और ज्योति माता जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, या पंडित प्रभु या श्वेता माता जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ क्लास सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे, घर चले जाएंगे। भक्तों का संग तो लिया ही नहीं। वो लोग भक्तों के संग ही तो बैठे हैं। आदान प्रदान क्या हुआ? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जो भी, वैसे तो अनफॉर्चुनेटली बोले यार, मैं बोलूँ ना इन प्रभु जी का नाम बता दो तो आपको भी नहीं पता होगा, इनको भी नहीं पता होगा। और मैं बोलूँ आप इनका नाम बता दो, आपको भी नहीं पता होगा। अपने को किसी भक्त का नाम तक नहीं पता, नाम तक नहीं पता, और हम बोलते हैं हम भक्तों का संग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ नाम पूछो, माताओं का माताओं को पुष्पा तो होना चाहिए, प्रभु जी का प्रभु जी को बात करनी चाहिए। हाँ भाई क्या करते हो, जैसे मेरे को पता है इनके बारे में, पूछता हूँ, मैं सबके बारे में पूछता रहता। आज सुबह पूछा था कितने बजे उठते हो, पूछा था कब भगवत गीता पढ़ते हो, कब 16 माला करते हो, दैट्स इट। ये मिले, मैंने इनसे पूछा आपके बारे में कैसे पता चला, मेरे को पहली बार मिले हैं तो मैं जानता हूँ। तो भैया अगर मेरे को ट्रेनिंग देनी है तो मेरे को अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता तो होना चाहिए, और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि बाकी स्टूडेंट्स का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स भक्ति। अब इन्होंने, और एक इनके साथ एक बच्चा और था 11th क्लास का ही, मैंने कहा माला कैसे करते हो, उसने आंसर दिया स्कूल में। मैंने कहा स्कूल में, स्कूल में तो पढ़ने जाते हो, कह रहे रिसेस में और गेम्स पीरियड में। इनसे पूछा, इन्होंने सेम आंसर दिया स्कूल में और भगवत गीता भी ले जाते हैं, यही बोला था ना आपने। मैं कहाँ पढ़ते हो, कह रहे रिसेस में और गेम्स पीरियड में। मेरे को उसी टाइम याद आई प्रहलाद महाराज की। मैं प्रहलाद महाराज जी राक्षसों के स्कूल में थे, और राक्षसों के स्कूल में प्रवचन देते थे, बाकी अपने स्टूडेंट्स को साथ में, स्टूडेंट नहीं अपने सहपाठियों को साथ में। कौन सा 10वीं का बच्चा भैया भगवत गीता पढ़ता है स्कूल के अंदर? सारी दुनिया पागल बोलेगी, देख लो। बोलते हैं, बोले थे ना। फिर आपने क्या किया, हरी बोल, काम करना। कैसे पता मेरे को, पूछते हैं। ये हिमांशु प्रभु मेरे को हर बार फोन करते हैं, प्रभु जी आगे दिल्ली से, मैं आऊंगा तभी आऊंगा जब आप आओगे। मेरे को भी कथा तो कथा ही है, कोई भी आए करे नहीं। चलो, यह योग कहलाता है। ऐसे भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। शेम का, ये शेम SHAME नहीं है, शेम का मतलब यहाँ पे है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। तो भगवान अपने संरक्षण में ले लेते हैं, अपनी प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? जो पूरी तरह से क्या होता है, भगवान के प्रति सरेंडर होता है। भगवान योग द्वारा पूर्णता कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। योग का मतलब, श्रद्धा माता बताओ, योग का मतलब क्या होता है? इसके बाद आप, नहीं आप बताओ। यस, नॉट ज्वाइन विद गॉड, हाँ, टू कनेक्ट विद समथिंग, है ना। तो योग, जैसे हम बचपन नहीं बोलते थे योग करो घटा करो, है ना, याद आ रहा है माता जी? तो योग का मतलब जमा। तो हमने अपनी लाइफ में चीजों को जमा, जमा का मतलब किसी चीज में ऐड करना। जैसे माता जी को मैंने बोला, ज्योति माता जी को, यू डू मेडिटेशन, लेकिन इसमें कृष्ण को ले आओ तो जमा कर दो कृष्ण। तो मेडिटेशन मेडिटेशन ही रहेगी। ये नहीं है कि ये नहीं करना, वो करना, अरे नहीं भैया, जो कर रहे हो बहुत अच्छा, वेरी गुड, उसमें ये ऐड कर दो। लेसन का काम नहीं है, लसन नहीं बोल रहा, लेसन का बोल रहा हूं। ऐसे लसन का भी कोई काम नहीं है। शेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णता कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद जीवन से फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। कौन बोल रहा है? भगवान। किसको बोल रहे हैं? मेरे को बोल रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण भावना बन जाता है तो उससे दुख में बद जीवन में फिर से गिरने से रक्षा करते हैं। क्योंकि इसको क्या बोला गया? कलयुग
दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। आज ये दुख नहीं है तो कल आएगा, नहीं आएगा तो बुढ़ापा आएगा, फिर रोना पड़ेगा। तो ये इन चक्रों से बाहर निकलो, कृष्ण भावना मृत हो, जैसे लाइफ जी रहे हो वैसे जियो, लेकिन कुछ चीजें ऐड कर दो अपनी लाइफ में। जो खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको अपनी जिंदगी में ऐड कर दो। कितना? जितना ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अब आपके हाथ में क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट का बटन है। और कौन सी मंजिल पे जाना है? टॉप फ्लोर। वो टॉप फ्लोर कितनी मंजिल की है? अनंत। चलो हम फिर भी थोड़े प्रैक्टिकल बात करते हैं। सिर्फ 10,000 स्टोरी बिल्डिंग है। कितनी स्टोरी? सीढ़ी से जा सकते हो? इम्पॉसिबल। आप बोलो कभी तो पहुंचूंगा, पता नहीं उतने में सांस घुट जाए, खाना पानी कहाँ से सीढ़ी में कहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास लिफ्ट है, और वो जो लिफ्ट है वो सुपर 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 डुपर तेज है, बस ऐसे ही। तो जब आपके पास लिफ्ट का बटन है, तो अब ये बोलो नहीं आई विल गो विथ स्टेप एंड स्टेप, तो वे सीढ़ी पे चढ़ जाओ, कभी ना कभी तो पहुंचोगे, ये बात तो पक्की है। ठीक है 10 करोड़ जन्म नहीं लगेंगे तो 1 करोड़ जन्म लगेगा। 1 करोड़ यार कहाँ मजाक बना रहे हो, 1 लाख ले लो। तो एक जीवन संभल नहीं रहा होता, टेंशन होती है 1000, 1 लाख जन्म और संभाल लोगे। तो जब लिफ्ट का बटन आ गया तो भैया बैठ जाओ, एज सुन एज पॉसिबल जितनी माला कर सकते हो उतनी करो, वेन एवर यू आर फ्री। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ माताएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काय का मुश्किल काम है ये? मुश्किल है? नहीं है, पर फिर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? कौन बताएगा क्यों नहीं होता? जो माला करते हैं बिल्कुल मन नहीं लगता इसमें, इम्पोर्टेंस नहीं, वेरी गुड आंसर, इम्पोर्टेंस नहीं देते। पता है क्यों नहीं देते? उसके भी 2-3 कारण है। नंबर 1, ज्यादातर की जिंदगी में आलस। नंबर 2, लापरवाही। और नंबर 3, अपने आप को हर काम में इतना व्यस्त रखना कि लगे 1 मिनट का टाइम ही नहीं है। जबकि शास्त्रों में लिखा 8 घंटे काम करो, तो कर लो ना 8-9 घंटे काम, बाकी टाइम दो। तो
ये एटमोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। कल मैं क्लास ले रहा था दिल्ली में, एक माता जी ने बोला कि प्रभु जी हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं कहा जब तक मंदिर में जाके कथा नहीं सुनोगे कुछ नहीं होने वाला, श्रवण साधु संग लेना पड़ेगा। उन्हें घर पे भी तो वही कर रहे हैं, हम काम कर तो रहे हैं, लेकिन घर की गृहस्थी है, इतना सारा काम होता है घर पे, सब कुछ करना होता है, तो कहाँ गलत हो गया, तो टाइम नहीं निकाल पाते। मैंने कहा एक बात बताओ, आज आपके घर में रिलेटिव आए जो आपको 25 साल बाद मिले, अमेरिका से आए, तो आप उनको मिलकर बड़े खुश होते हो, कह रहे हम आपको मिस करते थे 25 साल से, लेकिन बात नहीं हो पाती थी, हमारे बेटे की शादी है, रिजॉर्ट के अंदर है, आपने 100% आना। अब अमेरिका से, समझ रहे हो, बहुत पुराने मित्र हैं, जाओगे, अरे जाना ही पड़ेगा। तब 2 दिन का टाइम निकाल लोगे, 2 दिन, हम बोलते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए आ जाओ, तब टाइम नहीं होता, तब सारे घर के काम याद आ रहे हैं आपको। हम बोलते हैं तब 2 दिन कैसे निकालोगे आप, किसी की मृत्यु हो जाए तो क्रिया पे फॉर्मेलिटी सीख ही जाते हैं चाहे, लेकिन जाना तो पड़ता ही है, तो उसको एटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इसको क्यों नहीं दी जाती, तो यही गड़बड़ी। तो पहली चीज है आलस, दूसरी चीज है लापरवाही, और तीसरी चीज है अपने आप को इतना व्यस्त रखना। रूपपाल जी स्ट्रेट अवे बोलते थे कि डोंकी की तरह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, 8-9 घंटे जो आपके प्रारब्ध में है वो चल के आएगा, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा, और जो आएगा फालतू आएगा, अगर ज्यादा काम करोगे तो इधर उधर निकल जाएगा, क्योंकि भगवान ने भी यही बोला है, योगक्षेम मामेहम, मैं ही करूंगा सब कुछ, तुम्हारे को तो सिर्फ निमित्त मात्र बना रहा हूँ। अर्जुन को भी तो यही बोला कि तेरे, मैं मारने को भैया मैं नहीं मार सकता, मैं तो भैया कुछ ना करूं तो मर जाएंगे, कुछ भी ना करूं तो भी मार दूंगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तेरे को क्यों कर रहा हूं भैया, क्योंकि तेरे को निमित्त बना रहा हूं। तो आपको सब कुछ के लिए निमित्त बनाया जा रहा है, और फिर सारी पॉसिबिलिटीज दी जा रही है कि ये देखो भैया तुम्हारे से काम भी करा रहा हूँ, बुद्धि भी दे रहा हूँ, पढ़वा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये निमित्त करवा रहा हूँ, करने वाला मैं ही हूँ, हीरो मत बनना, मेरे को याद कर ले बस। आपने अपनी ऐसी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं या टैलेंटेड है, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, होता है ना, तो वो उनके प्रारब्ध आते हैं। अब बोलो वो भी पीएचडी था यार, अच्छे कॉलेज से था, नहीं हुआ। हमारे को इन चीजों पे सोचना और काम करना। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। 3 साल हो गए इसकी फील्ड में, बैंकिंग के, अच्छा पहले आप बैंकिंग में थे, नहीं तैयारी कर रहा था बैंकिंग। अच्छा अच्छा, 3 साल अब जाके एग्जाम क्लियर हुआ। बैंकिंग का हाँ। इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया, नहीं कुछ नहीं हो रहा था 2 साल, अब हो गया, अब हुआ। अच्छा। और वैसे फील्ड भी मैंने काफी चेंज की है। अभी तो आप टीचर कह रहे थे ना, हाँ बीएससी भी है, एमएससी भी है, बीएससी है, अच्छा एडमिशन केजीबी में हो गया था, वहाँ से किया किया। अब स्कूल में पढ़ा। कोई बात नहीं, भगवान न चाहते हैं, क्योंकि डोर हमारी किसके पास है, भगवान के पास। आदमी का काम है सिर्फ काम करते रहना, तो भगवान को याद करें, जिस तरफ भगवान लेके जाएंगे उस तरफ चलते जाएंगे, ट्राई करते उसके रहो। बाद तो मैंने ये सोच लिया था, हाँ जो हो रहा है वो कर रहा है, भगवान कर रहा है, yes, मतलब देगा वो तो भी वही देगा, मतलब छीनने वाला तो किसी से है ही नहीं। हाँ आप पक्की उसके बात, शरण में आ गए तो 100% ऐसे ही करना चाहिए। तो ये वाला श्लोक आप सब लोग याद करोगे, इसका मीनिंग भी याद करोगे, अगली क्लास में मैं आपसे सबसे सुनूंगा, याद दिलाना मेरे को, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करा तो 5 मिनट में ना, ये 9.22, ताकि अगर इसको याद करोगे तब अपनी जिंदगी में उतारते वक्त हेल्प मिलेगी। मेरे पीछे पीछे दोबारा दोहराओ।
अनन्या चिन्तयन्त माम् अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्य चिन्तयन्ते माम् अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। पढ़ो श्वेता माता जी। नहीं नहीं ऐसे टुकड़ों में पढ़ो, हम पीछे पीछे बोलेंगे। ऐसे बोलो, अनन्या चिन्तयन्तः माम् अनन्या चिन्तयन्तः माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते। आप वर्ड मीनिंग से पढ़ो ना, वर्ड मीनिंग से नहीं पढ़ रहे आप, वहीं से पढ़ रहे हैं ना, वहां से पढ़ा जाएगा आराम से। तेषाम तेषां नित्य अभियुक्तानां वहामि योगक्षेमं वहामि। एक श्लोक को ना 4 पार्ट्स में बांटना होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, अनन्यस चिंतयन्तमाम, एक टुकड़ा खत्म हो गया। ये जना पर्युपासते, दूसरा टुकड़ा खत्म हो गया। तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, तीसरा टुकड़ा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। नीचे वर्ड मीनिंग बहुत आसान दिए होते हैं। ज्योति माता जी पढ़ो। अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। आप पढ़ो बेटा। प्रभु आप क्या नाम भूल जाते हो, नाम बताओ। दिनेश, इनेश, इनेश। वर्ड मीनिंग से पढ़ो। चिन्तयन्त माम् अनन्या चिन्तयन्त माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है, अभी ये देखो वापस मतलब पे आओ। अगर वैसे नटशल में मतलब करना होगा तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हैं, मेरी निरंतर पूजा करते हैं, यानी कि पूरी तरह से फोकस होकर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको मैं पूरा करता हूँ, और उनके पास कुछ भी है उनकी रक्षा मैं करता हूँ। मीनिंग बताओ आप। फर्स्ट का मतलब है अनन्या। नहीं नहीं, ऐसे बताओ इन ए नटशल क्या बताया। बताया कि जो लोग विदाउट डिस्ट्रैक्शन फोकस मुझ पे करते हैं, मैं उनका पोजेशन, उनका जो कुछ भी उनका करना हो उसको प्रोटेक्ट करता हूँ और कुछ हानि नहीं होने देता हूँ, और जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ। वेरी गुड। श्लोक पढ़ो। अनन्या अनन्या निश्चिंतो माम् अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप पढ़ो। आपने तो पहले पढ़ा था, आपने पढ़ लिया। श्रद्धा माता जी आप पढ़ो। अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इधर से और प्रभु जी पढ़ो आप। अनन्या चिन्तयन्तो माम् अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप पढ़ो विवेक प्रभु। अनन्या चिन्तयो माम् अनन्या चिन्तयन्तो माम्
ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप पढ़ोगे हिमांशु प्रभु? चिंतयन्तो माम् अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिन्तयन्तो माम् अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहां। वेरी गुड, बिना देखे बोला इन्होंने। हरि बोल। अनन्या चिन्तयन्तो माम् अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। पढ़ोगे? बुक देना, बुक। अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबने पढ़ लिया? गुड। तो अब पता क्या होएगा, अगर आप अभी भी इसको बाद में ध्यान से एक बार अंदर जाने देना मीनिंग के साथ। अब जब आप घर जाओगे ना तो आपके दिमाग में ही चलेगा यार इसको याद करना। तो जब ये चलेगा तो कृष्णा कॉन्शियस हो गया। फिर उसका मतलब बार बार रिवाइज करोगे, भगवान ने क्या बोला है कि जो पूरी तरह से मेरे को शरणागत हो जाता है, पूरी तरह से समर्पित होता है, अनन्य भाव से होता है, उसकी सब चीज़ों की आवश्यकता की पूरी मैं करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। तो आज के बाद कभी भी मुसीबत में फंसेगा ना, आप नहीं कोई और, तो फिर पटाख से बोलोगे अरे यार भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये बोला तो है, तब आपके मुंह से निकलेगा। जिस दिन ये मुंह से निकलेगा ना उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि अब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। आई बात समझ में? ये अंदर लेना होता है। तो हम अंदर तो जाने नहीं देते, क्योंकि हम ना मसाला इकट्ठा कर रहे हैं कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी सुन लूँ, ये भी कर ले, ये भी कर ले। अंदर तो जाने दो, अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर जाने दो। यस। अच्छा रहता है कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे होते हैं, वो भी जाते हैं, पता नहीं चलता, तो वापस कैसे लाएं? देखो ये बात तो अर्जुन ने बोला था, अभी मैंने सुबह बताया था कि वो कहता है मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, यू हैव हर्ड इट। तो भगवान ने क्या बोलना है, निरंतर प्रैक्टिस से तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम 10.10, कि जो लगातार लगा रहता है और प्रेम पूर्वक लगा रहता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो लगा रहेगा, तो भगवान क्या बोलते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामुपयन्ति ते, तब मैं उसको बुद्धि दे दूंगा, तब वो मुझ तक आ पाएगा। उससे पहले तक स्ट्रगल है। 10 पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास का हम यहीं पे भोग डाल देते हैं, और अभी आरती करेंगे 5 मिनट में, बहुत सुंदर आरती होती है, और उसके बाद कीर्तन प्रसाद है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री श्री